Hi Darshan, how are you? I'm good, Pallavi. So good to see you. So glad to see you. Glad Okay. to see you too. Oh, absolutely, absolutely. तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था पर मैंने सोचा एक बार आप आ जाए उसके बाद में हमारे व्यूअर्स को हमारी ऑडियंस को आपके बारे में बता दूं एंड देन ऑफ कोर्स आई वांट टू हियर योर स्टोरी बिकॉज हमारे व्यूअर्स उससे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ टेरिफिक सेशन सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक सैटरडे इवनिंग I like your energy, Darshan. थैंक You यू should ग्रेट you should spread on this onto others quite often. Thank you so much. Thank you for that. Thank you. Great. Okay. So, आज जो हमारे गेस्ट मैं थोड़ा हिंदी में बात करने वाला हूँ बिकॉज शी इज गोना टॉक अ लॉट इन इंग्लिश एंड देन प्रॉब्ली मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा समझ में आ जाए क्योंकि शी इज एन एक्सपर्ट इनटू हीलिंग तो आज हमारी जो गेस्ट है जो हमारे कोच है शी स्पेशलाइजेज इनटू पैटर्न ब्रेकिंग तो लोग पूछेंगे पैटर्न्स क्या होता है तो पैटर्न्स बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा कि आपका जो ट्रॉमा है अब ये ट्रॉमा इतना भारी शब्द है तो वो ट्रॉमा में से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं वो हमें सिखाने वाली है वो हमें बताने वाली है प्रैक्टिकली एंड तीसरा इन सब सारी चीजों से हम लोग हील कैसे हो सकते हैं तो शी इज अ वेरी क्रिएटिव हीलर शी इज अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट the reason I'm using word artist is because it's an art. It is not just that we follow a standard process. So she's an artist. So please help me welcome Coach Pallavi Khambo. She's an NLP trainer. She's an artist and she's going to be helping us to come out of our patterns, break the pattern and heal us a lot. So आपका स्वागत है. Thank you so much for that beautiful, beautiful introduction and many, many more things. Can you hear me, Now Darshan? I can. Yes, now I Yeah. can. Yes. Thank you so much for that wonderful introduction, and I'm equally happy to be a part of this live so that we can help each other's people as much as we can. Let's Oh, add value to absolutely. their Absolutely. lives. देखिए पल्लवी ये मैं जानता हूं और आप हम बिकॉज वी कमिंग लाइव मैं ये समझ सकता हूं कि ये इससे अच्छी सेवा हम लोग नहीं कर सकते द वर्ड सेवा आई एम यूजिंग इज बिकॉज बिकॉज आई यूज द वर्ड आर्टिस्ट में वही रेफरेंस में सेवा को यूज कर रहा हूं बिकॉज आप अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करने वाले आप लोगों की सेवा करने वाले बिकॉज जो इसको यूज करेंगे जो इसको तरीके से समझने वाले हैं इसे रिपीट पे लूप पे देखने वाले हैं कई सारे लोगों के जीवन में आप बदलाव लेके आने वाले हो so not for just saying because we are going to be implementing this. And Absolutely. somebody like you who's a professional who's trained for this, who can be charging 10,000, 20,000 for an hour on a one-to-one session, you are giving complete value for free. तो मैं ये अपने viewers को बता देना चाहता हूँ कि ये Saturday evening अगर आप कोई मूवी में जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप कोई शो देख रहे हैं आप कोई वेब सीरीज देख रही है please give your next 45 minutes 50 minutes here because it will be a great value and we are going to be having hearing from the horse's mouth so here we go Pallavi please. Tell me what are your questions? I'm all in, all here to help your people, my people as much as we can. ग्रेट देखिए इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि कोच पल्लवी कौन है उनकी स्टोरी क्या है और उन्होंने ये जर्नी कैसे शुरू की. So I am based out of Dehradun, and ओके I was a vice principal in a school helping a lot of children. And of course, whenever you are involved in a state which is more of administration, you counsel, coach a lot of people otherwise also. I still am the wellness teacher in a school here. ओके I got into life coaching, understood what is it about, and it just the criteria that I'm here to help as many people as I can. But NLP is something that intrigued me a lot because it was all about understanding your subconscious. And while I was learning it, I was trying to break patterns for my own self. खुद के ऊपर काम करा और उसके बाद समझ आया, I mean, this is a magical wand to help people understand to break free from every limiting belief that they have in their heads. And then I just wanted to be out and about to help as many people rewire their thoughts and to just reshape their reality in the best of the capacity. And this is how, and that is how I got here. While I was doing all of this, Darshan, I have had very, very big and major personal losses. And of course, you never get out of those personal losses, but NLP really did help me a lot. Did help me understand how do I work through my emotions of grief. How do I help my subconscious to get out of that memory? Because I'll tell you something very honestly, any event, हमारी जिंदगी में कोई भी जो इवेंट होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 4 से 12 मिनट तक रहता है. उसके बाद तो हम सिर्फ उसकी मेमोरीज पे काम करते रहते हैं और वही हमें परेशान करता रहता है. so true. So, yeah, so I think NLP helped me work through a lot of my personal losses in my life, and that is how I thought, let's go out.
And I did start my journey just creating one reel, and all that you see over my media is all organic. I have not done anything. Neither do I have paid in ads, nothing. It's just content, right intentions, and the right energy, and it can take you anywhere. ओके ग्रेट। मतलब ये आपने दो तीन चीजों की बात की, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि वो जो इंटेंट आप लेके आए हैं, जो उत्साह आपके अंदर है, और जो एक शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, कि जो आप सरलता लेके आए हैं इधर, बिकॉज ये सरलता दिख रही है यहाँ पे। और आजकल सरल होना बहुत मुश्किल हो गया है, हालांकि बहुत सिंपल है, बट हम लोग ने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। सो गोइंग बैक टू टू थिंग्स विच यू मेंशन, कि आपकी पर्सनल स्टोरी में, सॉरी पर्सनल स्टोरी में आपने बताया कि एक पर्सनल लॉस था। नाउ पर्सनल लॉसेस फॉर आवर व्यूअर्स में क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जस्ट इन जेनरिक सेंस, यू डोंट नीड टू गेट इनटू एनी डिटेल्स, कि पर्सनल लॉस होता है कि आप बिजनेस में आपका नुकसान होता है, आपकी पर्सनल ट्रेजेडी में आपके नियर एंड डियर वंस को आप गुंवा देते हैं, या ऐसा कोई वाक्य होता है जहां पे आपको फिजिकल डैमेज होता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है या एक्सवाइजेड चीज होती है, तो इनमें से आपको किस चीज ने इम्पैक्ट किया? Loss of the loss of the closest person that I've had in my life. ओके फाइन, One of ग्रेट, my parent. करेक्ट। सो ये चीजें देखिए, ये आई मीन वी लाइक इट और नॉट, इससे हर कोई गुजरने वाला है, और Absolutely. हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत Absolutely. बड़ी सीख है, और दिस इज इनएविटेबल। तो आई Mhm. थिंक हमारे व्यूअर्स को ये भी समझना जरूरी है कि आपके समक्ष जो आज आए हैं, वो ये फील कर चुके हैं, दे हैव गॉन थ्रू दिस, दे हैव बीन देयर एंड डन दैट, एंड दैट इज वेयर दे हैव ओवरकम दिस ओवरऑल थिंग। ट्रॉमा के बारे में बताइए, बिकॉज जब आपको ये फील हुआ, what was the first set of thoughts which happened to you? Maybe it happened yesterday, it happened 2 years back, because it feels like yesterday. Yeah, of course, of course. I mean, something like this, if you lose one of your parent, I think आप इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते हो दर्शन. Correct. It is a myth when people say 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, पर सफरिंग इज एक्सट्रीमली पर्सनल, Correct. और आप इसमें पूरा जिंदगी रह सकते हैं, एंड यू माइट नॉट कम आउट ऑफ इट, एंड आई डोंट सी माई सेल्फ कमिंग आउट ऑफ इट एवर, बट आप कोशिश कर सकते हैं दैट यू सिट विद योर इमोशंस. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन अ स्टेट ऑफ डिनायल एंड विक्टिमहुड. क्यों हुआ? पूरा जिंदगी में 90% लोग सिर्फ इसीलिए रह जाते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा करा, ऐसा हुआ, और क्यों हुआ. क्यों से बाहर भी एक दुनिया. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम अवेयर कि ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ, and then you have to figure out ways to get out of it. The most important thing at this point in time is क्योंकि आपके पास खुद इतनी एनर्जी नहीं होती है कि you process everything. The right support system is extremely important. Extremely important. I've been blessed with some wonderful set of people who were always there while I was dealing with a big thing like that. So I think जिंदगी में सही लोग होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, इस चीज से वर्कआउट करने के लिए. And then not running away from your emotions, not running away from the loss, and not staying in a state of victimhood कि क्यों हुआ और क्या हुआ. हो गया है, पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ होगा. Today we are here, tomorrow we aren't going to be here. As simple as that. सरल है. बट द प्रॉब्लम इज कि ये होगा, और इसके होने से कितने रिचुअल्स हैं वो सब हम लोगों को सिखाते हैं, लेकिन उसके बिना, उस इंसान के बिना जब आपकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो हमें कोई नहीं सिखाता. सो प्रोबेबली आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ एज अ डॉटर, इजंट इट? आई विल नेवर बी समबडीज डॉटर. वो मुश्किल है. उसको आप कैसे काम करते हैं उस पे, इट्स just don't run away. Sit with yourself, figure out what do you need. Tell it to the people that you love the most that you need them to be with you. अकेले रह के कुछ नहीं होगा. You will have to lovely. still fight it. मतलब ये अपने आपके चेहरे पे मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ, वो सारे सवाल का रेफरेंस पॉइंट मुझे मिला. मैं इनर चाइल्ड की बात करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने अभी देखा वो इनर चाइल्ड को 2 सेकंड के लिए. पर मैं उससे पहले जाता हूँ कि जो ट्रॉमा की बात हुई, ट्रॉमा के बाद आपने बताया कि कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, पर आपने सीखा और आपने अप्लाई किया कि मैं वो पैटर्न्स ब्रेक करूंगी. तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए. पैटर्न्स में से कैसे बाहर आ सकते हैं और क्यों जरूरी है? देखिए, पैटर्न्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं दर्शन जी. अगर लॉट ऑफ टाइम्स द विमेन दैट आई एम डीलिंग विद, द पीपल दैट आई एम डीलिंग विद, इट्स नॉट जनरली विमेन बट अ लॉट ऑफ मेन ऑल्सो. आई डू रिलेशनशिप कोचिंग ऑल्सो. तो बहुत सारे लोग आते हैं सबकॉन्शियस पैटर्न्स को लेके, जिसमें एक बिलीफ सिस्टम होता है कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन द मोस्ट beautiful people talking to me and telling me that they don't look good.
most high achievers coming to me and telling me कि I don't see myself doing anything. I'm useless. People who have done brilliantly well as far as their life is concerned, academically, professionally, they're doing great. I have a lot of women who are in the corporate sector working for companies like Google and everything. And then they would come to me and tell me that I have not achieved anything. You know, this is what the pattern is. The pattern, the voice that you carry over from your childhood. उन patterns को वो these are the patterns that we need to break. The fact that I'm not good enough, I don't look nice, I don't like myself, I can't talk well, I can't walk well. वो शायद एक टीचर ने कभी किसी क्लास 3 में आपको बोल दिया होगा कि आप I don't like your voice. So there has been one of my client who says that I don't like my voice. When I had to understand this pattern, and she had become quiet. We had to figure out, I was doing her subconscious work and then I figured out class 3 or 4 में उसको she was on the stage और एक टीचर ने उसको बोल दिया था that I don't like your voice, it is very bad to my ears, stop talking. Since that day, she thinks that her voice is not good and she's turned an introvert. She does not talk much. You know, these are the patterns that we are talking about. The patterns that come from your childhood. That is not even the voice of youth. वो तुम्हारी खुद की आवाज है भी नहीं. वो कुछ ऐसे लोगों की आवाज है जो शायद अब जिंदगी में महत्व भी नहीं रखते, बट है. इन पैटर्न्स के तोड़ने की बात है. करेक्ट. इसमें और चीजें भी ऐसी होती है जहां पे लोग आपसे कहते हैं आपके बचपन में या आपके अर्ली डेज में कि यू आर नॉट गुड इनफ, जो आपने बताया. और एक ज्यादा फीलिंग आजकल लोगों को हो रही है कि मुझे लोग प्रेम नहीं करते हैं या मेरी वैल्यू नहीं करते हैं या महत्वपूर्ण नहीं हूं या मैं यहाँ पे मिसफिट हूं. ये 3 4 5 चीजें बहुत प्रिविलेंट हो रही है. सोशल मीडिया का जमाना है, कंपैरिजन का जमाना है, एंड देन यू नो बीइंग कॉम्पिटिटिव इज एवरीबॉडी वांट्स टू बी कॉम्पिटिटिव. तो इन सारी चीजों में वो इनर चाइल्ड, वो बच्चा गायब हो जाता है और वो बच्चा हमेशा सहमा हुआ रहता है. तो क्या करने से वो इनर चाइल्ड को हम लोग शांत कर सकते हैं, उसे ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, उसे हिम्मत दे सकते हैं और उससे जो ये बड़ा बच्चा है उसे हील कर सकते हैं? देखिए, ये जो आप मुझे बात बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली इनर चाइल्ड की बात नहीं है, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन की बात. ओके. इट इज एक्सटर्नल वैलिडेशन. अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है ना दर्शन, व्हेन आवर वर्थ इज डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ अस, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है. यू नो, इनर चाइल्ड इज अ लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. उसका भी एक पार्ट है कि आप वैलिडेशन के लिए काम करते रह जाते हो एंड यू वांट somebody to like you over doing something when you want to be productive. और उसके बाद आप देखो कि आज मैं कुछ कर रही हूँ, like you said, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कितना लाइक है, कितना लोगों का व्यू आया, कितना कमेंट आया, what is the other person doing over the social media. External validation is a very, very big problem. But inner child is actually those and that version of you. Those ages जहां पे आपको कुछ चाहिए था, शायद यू वर नॉट सीन, शायद यू वर नॉट हर्ड, शायद यू वर नॉट लव्ड, शायद यू वर नॉट वैलिडेटेड एंड एक्नॉलेज्ड. उस वर्जन को जो उस टाइम पे नहीं मिला, उससे मिलके अब उसे देना शुरू करना. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग, कि आप उन पार्ट्स से मिले अपने, जिन पार्ट्स को उस टाइम पे शायद वो प्यार नहीं मिला, वो महत्वता नहीं मिली और अब मिलना चाहती है. You know, that is something that should not be dependent on the outside world. You have to start to give yourself that thing, those things that you have not gotten at that point in time. क्योंकि अभी भी अगर बाहर से मिलेगा ना दर्शन, आज आप मुझे बोलोगे पल्लवी आपने अच्छा सेशन किया, I am going to move here. Then tomorrow somebody else tells me पल्लवी आपने तो बहुत ही खराब सेशन किया and I will go here. The agenda is to just stay here. Right? The agenda is to just stay here. When Darshan says Pallavi, you are doing great, I will say, you know, you can see this because you are that individual. I'm sure you must be doing great. You can only see those things in me, those things that you have in you. Correct. So I think giving yourself that validation, that love, that everything that you have not gotten at that point in time, that's more about inner child. Okay. So ये जो बचपन के जो issues होते हैं, जो wounds कहते हैं हम लोग, वो एडल्ट रिलेशनशिप इतने उभर के क्यों आते हैं? बिकॉज एज सून एज समबडी बिकम्स एन एडल्ट या अर्ली 20s 30s में, कई बार लेट 40s में भी दिखते हैं. व्हाट इज द इशू? बिकॉज वो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि कुछ ना कुछ मुझे परेशान कर रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं अंदर से कंफर्टेबल नहीं हूँ.
तो व्हाट इज देखिए दिस? देखिए जब भी लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द सबकॉन्शियस ना 90% सबकॉन्शियस हमारा 1 से 7 साल के बीच में बन जाता है. ओह ओके. ठीक है 90% ऑफ योर सबकॉन्शियस वॉट एवर बिलीव्स दैट यू कैरी वॉट एवर फियर्स दैट यू कैरी द सर्वाइवल पैटर्न्स दैट यू कैरी वॉट एवर यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड वो इनिशियल 1 से 7 साल में बन जाता है. बट अब तो बहुत अभी वेरी रिसेंट रिसर्च हैज बीन देयर कि जो हम लोग अपने बच्चों के साथ 1 से 7 साल में नहीं कर पाए हैं अब वो 13 से 17 साल में हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. देयर इज अ वेरी रिसेंट रिसर्च डन अराउंड इट कि अब अगर हम लोग किसी चीज के बारे में अवेयर हो रहे हैं और उसको वी आर चेंजिंग द पैटर्न वी आर चेंजिंग द आइडेंटिटी उसके लिए आप डिफरेंट एक्शंस ले रहे हो यू कैन चेंज योर आइडेंटिटी. So that's something that's very valid now. But उसके लिए उस इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिंदगी की that I want to shift this pattern. But like you said, जब हमारा पैटर्न ही 90% बन चुका है 1 से 7 साल के बीच में उसके बाद अगर आपने उन बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम नहीं करा है like I said I am not good enough. तो अगर आपका पार्टनर व्हेन यू ग्रो इन एज एन एडल्ट अगर सिर्फ आपका एक फोन नहीं उठाएगा ना सो यू विल जॉइन द डॉट्स हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स थिंकिंग कि अभी तो मैं आई एम नॉट गुड इनफ दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट पिकिंग अप द कॉल. चाहे वो इंसान ऑफिस की एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में होगा बट यू विल नॉट हैव दैट स्पेस टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पैटर्न्स दैट यू कैरी इन योर चाइल्डहुड किसी इंसान की शायद इंटेंशन भी ना हो आपको वहां पे वो फील करवाने की बट यू स्टार्ट टू मेक अ लॉट ऑफ assumptions अराउंड यू बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू बिलीव अबाउट यू. और उसके बाद आप कंफर्मेशन बायस के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हो. यू ट्राई टू कंफर्म एवरीथिंग दैट यू थिंक इज ट्रू एंड यू विल स्टार्ट टू वर्क अराउंड थिंग्स कि अब ये जो कर रहा है वो इसी चीज के लिए कर रहा है. दिस इज द प्रूफ. ओके. दैट इज द कॉन्सेप्ट. एंड जब भी हम लोग अपने खुद के इमोशंस के साथ बिलीव्स फियर्स के साथ नहीं बैठते ना दर्शन लाइक आई सेड सबकॉन्शियस डज नॉट लाइक गुड और बैड इट लाइक्स फेमिलियरिटी. तो अगर मैं खुद के बारे में बिलीव करती हूँ ना आई एम नॉट डूइंग ग्रेट आई विल गेट 100 people in my life who are going to come and tell me that you're not doing great. So every relationship is going to bring out the triggers that you are holding on to you since it is familiar. Okay. So in that case कैसे पता चलेगा कि अगर कोई समझना चाह रहा है बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इनसाइड कैसे पता चलेगा कि उनका कोई इमोशनल ट्रॉमा उन्हें बॉदर कर रहा है या इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं है कैसे पता चलेगा? देखिए वो तो इट इज आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी कंटेंट विद देयर ओन सेल्फ. आई नेवर से दैट you have a problem in a relationship or you have a problem with this person that person. I mean if you have 10 people in your life दर्शन ठीक है ना और अगर उन 10 लोगों में से 8 के साथ तुम्हारा ठीक ठाक चल रही है ना जिंदगी यू हैव अ फाइन रिलेशनशिप दैट यू कैन मेंटेन आई थिंक यू आर डूइंग फाइन इन योर लाइफ. कुछ 2 लोगों के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज हो सकता है कि तुम्हारा परसेप्शन उनसे ना मिलते हो ओपिनियंस ना मिलते हो व्यूज ना मिलते हो दैट इज ऑल राइट. बट अगर तुम्हारा 10 में से 8 लोगों के साथ स्ट्रगल है ना आई जेन्युइनली बिलीव दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अबाउट. देन आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग नॉट वर्किंग फॉर मी. Then that situation can be taken care of. Then you are not doing emotionally great. Correct. But वहां पे इन्हें चेंज करने के लिए या उसमें से बाहर आने के लिए क्या करना होगा? क्या उनके पैटर्न्स खराब है? क्या यानी उनकी थिंकिंग पैटर्न खराब है या उनके ट्रॉमास उनको बॉदर कर रहे हैं? What is the issue? see, I genuinely believe it is all about how you see yourself. If like I'll tell you, Darshan, today if I tell you, Darshan, I don't like your blue hair. I mean, what is wrong with you? Why do you have a blue color hair? Will you get offended? What will you tell me? Pallavi, I think there is a problem with your eyes. तुम अपना आँख चेक करवा लो or you'll just brush it off, right? Laugh it off, हाँ. Right. But अगर आपके नीले बाल हैं और आपको खुद को वो नीले बाल पसंद नहीं है and if I tell you something around it, trust me, you're going to fight me out. So this is something that you believe about your own self. Correct. That's why it is the trigger. अगर मुझे आप बोल दो पल्लवी I don't like your blue hair, I will also laugh it out because I know दर्शन मजाक ही कर रहे होंगे या I think probably he is struggling with something, no? I'm not going to fight you for that. So it is genuinely the awareness of what is it that is a struggle for you. I mean, why are you getting triggered? You sit with it. नेम द अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स कौन सी जगह पे मैं हमेशा गुस्सा होता हूँ या होती हूँ. नेम द इमोशन
फिगर आउट द रूट कॉज, वो आता कहाँ से है, आता कहाँ से है वो, एंड देन try to understand what can be best done to not be in the same situation again. क्योंकि कोई ना कोई coping mechanism तो अभी तक हम लोगों ने बना लिया होगा. अगर किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं कुछ फेंक के मारूंगी, is also a coping mechanism ना. और अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे लगे this person is not worth the effort, I mean I don't want to get into this space, this is not me, so I'll go away, is also a coping mechanism. So it's a choice. The idea is जो भी चीज तुम्हारे mental peace को ठीक ठाक रखती है ना, I mean, go about it. ओके, ग्रेट. पर ये जिस तरह से आपने बताया कि अगर कोई इस ऐसी चीज से तकलीफ है उसको, इफ दे आर फेसिंग दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज, एंड आई गॉट डीएम्स दैट somebody who is 21 has written कि मैं कुछ स्पेसिफिक प्रकार के लोगों को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूं और वो बार बार रिपीट हो रहे मेरी लाइफ में. तो इज दैट समथिंग कनेक्टेड हियर? जैसे मैंने बोला, subconscious pattern does not understand good or bad. It understands familiarity. I'll give you another case of my client. It is going to give you a better window. So, one of my client, I mean, a lot of my women client would come to me and they would genuinely ask me कि पल्लवी नहीं हो रहा है. I am the person who is earning. I am taking care of the children, roles, responsibilities. I am only taking care of the finances. The husband is not doing anything, asks money from me and everything, and they were struggling, work-life balance, this and that and whatnot. And you know, when I was trying to figure out her subconscious work and understanding, she comes from a space where the father was also not a provider. Oh. He was not here. He was not emotionally available, physically also not available, and financially, of course, not a provider. So like I said, subconscious patterns would want and would see familiarity. Okay. अगर आज मैं a lot of women that I work with, a lot of people that I work with, अगर मैं उनको बोलूं ना कि भाई this is something that you should not do, they have I mean, pain is become their habit. Oh. Negative thinking has become their habit. So it becomes very difficult. Very, very difficult for them to break this pattern. Oh, I mean, absolutely. how much can they cry, I want to get rid of it? Trust me, they won't do the work to get rid of it because it is their comfort zone. It is the familiarity. So they attract because the subconscious, the nervous system is familiar with that pattern. They need to break that pattern और उसके लिए ना different actions लेने पड़ेंगे. जो actions वो regularly लेते हैं उससे अलग लेने पड़ेंगे. सॉरी. सो पल्लवी, मैं चाहता हूं कि वो एक्शंस के बारे में आप बात करी, पर मैं यहाँ पे एक और पॉज लेना चाहता हूँ बिकॉज जो हम लोग सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं वहां पे एक और मेरे पास बड़ा सा प्रॉब्लम है, जो एक बड़ा सा डीएम है मेरे पास कि आई हैड टू एक्चुअली गो थ्रू द एंटायर रिटन नोट. somebody says or they acknowledging they are a compulsive negative thinker, they constantly have complaining mode, and third is they usually find fault with everything and anything which they bump into, and then they inside out they know कि वो गलत है, पर because of their public image, because of their aura which they have created, so called aura, कि मैं तो ऐसे ही बिहेव करता हूँ या करती हूँ, now I cannot change क्योंकि उनकी इमेज में वो डेंट पड़ेगा, but they are suffering a lot. I'll tell you, that's a very beautiful thing, and I have personally had a lot of clients, men especially, the image that you're talking about. Exactly, I tell you, I've had a lot of male clients in my coaching, and I'll tell you something around it. People who need the most love will ask for it in the most unloved ways. I mean, जिनको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है ना, हमें दर्शन, वो सबसे ज्यादा खराब तरीके से बिहेवियर रखते हैं अपना. Lovely. Do you understand? And इनका inner child का problem है. They have not got the love and anger and everything that you're talking about, इधर तोड़फोड़, उधर चिल्लाना, इधर माना, is क्यों चिल्लाएंगे? Why will I shout? Tell me, Darshan, if I know that you are right in front of me and we are listening to each other, I will not shout, isn't it? बट अगर मुझे लग रहा है दर्शन दूर है और मुझे उनको कुछ बताना है तो मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सुनते नहीं है मुझे. He is not listening to me. For that, I'll have to shout, right? So these individuals, they, like I said, they will have to become aware and take the responsibility of changing their own life. When I take clarity calls of my people, I tell them I can only be the conduit to change. I will not be able to change you unless and until आप responsibility नहीं ले पाते हैं.
Lovely. You will have to take the responsibility of changing your patterns. I mean, I can't get into your mind and help you do that. But I think when you get the right coach, when you get the right person, people are ready to work around it where they feel that they are not judged. Such people that you're talking about, they have the biggest fear that they're going to get judged and nobody's going to listen to them. Every individual, na, Darshan, who is dealing with something or the other, the problem is उनको प्यार नहीं मिला. If we start to give love to people, people will change, and I'm sure for the better. ओके, पर ये स्टोन वॉलिंग करते हैं, ऐसा देखा जाता है. दे गॉट गार्ड्स, दे गॉट वॉल्स, they have that he-man image. If it's a women, they want to show that they are strong, they are carefree. They're typical patterns. मैं ये सारे cases आपके साथ शेयर करूं because मैं चाहता हूं कि वास्ट ऑडियंस को इससे बेनिफिट हो और आप उसके सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं. एट इज यू गिविंग द क्लूज एंड डायरेक्शंस टू मूव ऑन. ऐसे सारे क्लासिक केसेस हैं. देखिए ये तो fall in the same thing. They all fall in the same thing. Like I said, he-man image or hyper-independent woman, everything around that. It has a story of the inner child, no? अगर भाई माँ बाप थे ही नहीं कभी बताने के लिए कुछ या कुछ करने के लिए, और अगर घर में there is a lot of chaos, parents are fighting, not there physically, emotionally, तो उस बच्चे को तो अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी ना दर्शन. उसको तो इमोशनली भी हर एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. तो वो क्यों नहीं स्ट्रांग होगा या होगी? डू दे हैव अ चॉइस? Tell me, if I have lost one of my parents, do I have a choice of not taking care of my father and my brother? I don't have a choice. Actually. Even I am going through the same loss, but do I have the, I mean, can I? No, I can't. I will have to eventually take care of them. I know he's getting old. I will have to take care of him. Do I have a choice? Then people don't have a choice, no, isn't it? But it's a choice which you made. Which choice? It's a choice which you made to be better, to be stronger, to Of be. course. Or you could have gone other way around. 100%. 100%. Shell, and then probably things would overpower you. 100%. I think with every problem that you come across in your life, it's always a choice that you become better or bitter. You know, there are two choices. There's a story of this alcoholic father, no, where there are two sons, and इतना फादर शराब पीता था तो एक बेटे ने बोला मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, और दूसरा पीता रहा. You know, so it's always a choice. I mean, no offense to people who drink, but then it's a choice. It's a choice कि आपके साथ ये जो मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और के साथ, you know, I am not going to do this with anybody. Or the other stories, मेरे साथ हुआ है तो I'm going to show the world how does it feel like. जब मेरे साथ हुआ तो सबके साथ होगा. Killer. Yeah. So it is a choice that you make readily around everything in your life. Correct. यहाँ पे आपने कुछ क्षण पहले बताया था कि कुछ डायरेक्शंस आप दे रहे थे, कुछ क्लूज आप दे रहे थे, कुछ गाइडेंस आप दे रही थी. वो बताइए क्या गाइडेंस, किसके लिए, किससे, किस तरह से इन पैटर्न्स में से, ये इमेज में से, ये सेल्फ थॉट में से बाहर निकल सकते हैं. मैंने बताया टू बिकम अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स, टू बिकम अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स. देखिए यूजुअली ट्रिगर्स 4 तरीके के होते हैं. या तो कोई आपका एक विजुअल ट्रिगर होगा, मुझे इस इंसान को देख के कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यू नो, मुझे इस जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स जब कोई हार्ट ब्रेक होता है या ब्रेकअप हो जाता है, यंग चिल्ड्रन, यूथ, मुझे ये देख के, ये जगह देख के मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे अपने पार्टनर की याद आ जाती है, मुझे कुछ सुन के, मुझे ये गाना सुन के उसकी याद आ जाती है, मुझे ये शब्दों से उसकी याद आ जाती है. फिर होता है, एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडियो. देन देयर इज kinesthetic, you know, the feeling that person is not there, and then the thoughts, your own thoughts can be your trigger. तुम उसके बारे में खुद से सोचने लग जाते हो. तो ट्रिगर, जब मेरे को पता है कि ये इंसान मेरा ट्रिगर है, लेट्स से, ठीक है, इस इंसान से आज मैं मिलूंगी और ये इंसान मेरा ट्रिगर है, तो पहली बात तो मैं मिलूंगी नहीं. ओके. I mean, you have to be so conscious and aware. ये ऑटो पायलट पे नहीं होगा. अगर मुझे पता है इस इंसान की ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती है, कंटिन्यूअसली जब मैं इससे मिल रही हूँ तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकल रहा है विच आई एम नॉट लाइकिंग. Absolutely. You know, this person probably puts me to a space that I don't like, questions me, questions my belief, questions my worth, this, that, something that I don't like. I'm not comfortable. My body starts to get tense. I can't be me and myself. Why do I meet this person? So, but that is awareness. For that you will have to work on a lot of things, क्योंकि इनिशियली मेरे पास या कोई भी काम करने आएगा ना, वो पूरा दुनिया को ही बुरा बताएगा.
My parents did not do this. My mother, my father, my brother, my sister, my boss, my colleague, और कुछ भी नहीं होता तो भगवान भी. So people have this concept of putting it on everything and everybody outside of them but them. So in the coaching work, I slowly take them to their own patterns, figuring out why are they here. For everybody who's dealing with anything in their life, there's this one question that can really change your life, and that is to sit with yourself and ask this one very question. What did you do to be in this situation? Oh, okay. What did you do to be in this situation? Why are you in this situation? Once you start to take the responsibility, today, if I say this person is not even treating me right, all right, just check with yourself, is there in any way you are contributing to this misery between the two of you? और अगर नहीं है, अगर सिर्फ उसका ही है, उस इंसान का ही प्रॉब्लम है, then it's a choice that you make, no, कि मुझे रहना है इसके साथ कि नहीं रहना है. It's a choice then that you make. But for that, you have to be extremely aware of your triggers. Like I said, सबका visual होगा, auditory होगा, कोई feeling होगी, kinesthetic या कोई thought. True, true, true. तो since we were talking about breakups, ये breakups के बाद ये intense feeling क्यों होती है? What is that which is that actual pain which is happening? Because you know a lot of Gen Z have written this. You lose a version of you, know, तुम्हारी emotional safety space जो तुमने उस इंसान के अंदर invest करी थी. Okay. You lose that version of you, what you were with that person, isn't it? Oh, थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बताइए बिकॉज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी और थोड़ा सा सिंपल बताइए बिकॉज बच्चों को समझना पड़ेगा, यूथ को समझना पड़ेगा. बताइए. देखिए, जो मैं खुद को नहीं दे पा रही हूँ ना, अगर वो मुझे कोई और इंसान दे रहा है ना, तो मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग, देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सबको किसी ना किसी से प्यार हुआ है और हम सब ने किसी ना किसी को खोया भी है. बट हाउ इज इट कि एक इंसान बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल पे चले जाता है, सब जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर मेरा खाना वो दूसरा इंसान ही पूरा लेके आ रहा है ना, तो मुझे ज्यादा भूख लगेगी और ज्यादा प्रॉब्लम होगी उस इंसान के बिना. तो खुद को खाना देना शुरू करिए. गिव दैट लव टू योर ओन सेल्फ विच यू आर seeking and asking from the other person. So while you lose that person, अगर आपका सब कुछ उस इंसान पे डिपेंडेंट है ना, your worth, your esteem, your everything, you know, then it is a major problem. Otherwise, like I said, it's a part of life. लोग चले जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो जाने दीजिए, कुछ लोगों को बेहतर ही आएगा. Correct. We have a lot of questions, but I think somebody's asked here, what if the person we live with are the triggers and there is no option to move out from there, either side? How to deal with R741? Somebody's asking this. Yeah. देखिए, मेरे पास एक क्लाइंट है जो मुझसे हर बार ये क्वेश्चन पूछती है, एंड आई ऑलवेज टेल हर कि उस इंसान को उसका खाना देना बंद कर दीजिए, और खाना आपकी एनर्जी है. यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर मैं आज, आपने खाना बनाया है दर्शन मेरे लिए, ठीक है, और मैं आपको बोल दूं कि अरे इतना खराब खाना कैसे बनाते हैं आप, इतना खराब खाना तो मैंने खाया ही नहीं. डू यू थिंक एनीबडी हु इज सेन वो आपको बोलेगा ऐसा? और अगर इफ आई एम सेइंग दिस टू यू, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? क्या करने की कोशिश है मेरी? गैस लाइट करने की कोशिश है, इंटिमिडेट करने की कोशिश है. भैया मत दो उसको खाना. उसका खाना, जैसे तुम इस ट्रैप में और लूप में आ जाओगे ना, जैसे ही तुम बोलोगे कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या है ये, द मोमेंट यू गेट इनटू दिस ट्रैप, यू गेट entrapped in the energy loop. तुम नहीं निकलोगे उससे बाहर. So the best thing is, don't give your energy to this one individual. I am sure प्राइमरी केयर सर्कल में अगर कोई है, प्राइमरी सर्कल में तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वाइफ, तुम्हारा, इट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. बट धीरे धीरे, आई ऑलवेज से, इन दिस लाइफ वी ऑल हैव टू परस्यू आवरसेल्व्स. अपने आप को परस्यू करने की कोशिश करो, जो तुम्हें करना है उसको करो. आई थिंक, एंड डोंट वर्क थ्रू दिस स्ट्रगल. उस इंसान को एनर्जी भी मत दो, और जब ऐसा वो कुछ करने लगा है या लगी है, चले जाओ वहां से. गो आउट, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस. दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. Correct. So somewhere you have to draw a line is a simple thing. Boundaries. People will have to understand. समझना पड़ेगा कि चाहे जितने करीबी हो,
चाहे आपके प्राइमरी लेवल पे कनेक्शंस हो, अगर सेकेंडरी टर्शरी है तो ठीक है, बट प्राइमरी लेवल पे आपको एक हल्का सा बाउंड्री बनाना पड़ेगा और उन्हें कन्वे करना पड़ेगा। Absolutely, communication is the key. मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा. Darshan, I think this is also one of a very big problem that I've figured out while I've worked with so many people around, that initially क्या होता है, वो boundary नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो अगर मैं if I am meeting Darshan and I am telling him कि दर्शन आप दर्शन इज टेलिंग मी पल्लवी आज लाइव करते हैं, तो हम बोलेंगे ऑल राइट, फिर दर्शन बोल रहे हैं कि पल्लवी सो वी आर नॉट क्रिएटिंग बाउंड्रीज. हालांकि जब हम दर्शन से पूछते हैं तो दर्शन ने मुझे बोल दिया पल्लवी आज मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक देखते हैं. तो दर्शन इज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज विद हिज बाउंड्री. बट अगर पल्लवी ने उसे 4 बार हाँ बोल दिया ना, तो वो सोचेगा इसको तो मैं कभी भी बोलता हूँ तो ऐसा हो जाता है. आई हैव नो बाउंड्री, राइट? सो दैट people get addicted to this pattern कि मैं इसको कुछ भी बोल रहा हूँ, not understanding, she's not giving, she's a yes person. And then eventually when जब हम लोग completely और बार बार yes करते रहते हैं, it puts a lot of impact. You get emotionally, physically, mentally exhausted. तब प्रॉब्लम होती है लोगों को. तब वो कहते हैं अब हमें बाउंड्री बनानी है. इट इज अ डिफिकल्ट गेम, बट जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाउंड्री बनानी है, उस दिन से बनाना शुरू कर दो. Not everybody deserves your energy. It is as sacred as your body. So nobody needs your, you need not give your energy to people who don't deserve it. Correct. So इसके कनेक्टेड एक सवाल है मेरे पास यूथ का कि यूथ ओवर गिव करते हैं हमेशा, पीपल प्लीज करते हैं, दे गो ओवरबोर्ड इन द रिलेशनशिप्स एंड देन दे हैव अ सेटबैक. यहाँ पे क्या करना चाहिए? बोला ना मैंने, ये जो फिट इन वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो है ही एक्सटर्नल वैलिडेशन का ना. खुद के साथ नहीं बैठ सकते. आपको पता है एक रिसर्च हुआ था जिसमें लोगों ने बोला था कि अगर हम ऐसा कुछ करें, देयर इज दिस रिसर्च डन कि तुम अपने थॉट्स के साथ बैठना चाहोगे या मरना पसंद चाहोगे. द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु हैव सेड कि हम मरना पसंद करेंगे वाज बिगर देन पीपल हु वर रेडी टू सिट विद देयर थॉट्स. तो इतना प्रॉब्लम है अपने साथ बैठने के लिए, बिकॉज they don't know. I mean, if I don't know myself, मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा ना दर्शन. If I don't know myself, that's the bigger problem. Like I said, for every young child, every youth, everybody who's watching this, your ideology in your life should be to pursue yourself, what you like, what you don't like. How comfortable are you with yourself? What are your dreams? What are your goals? What kind of books do you want to read? What kind of the people that you want to stay with? अपने को देखो. Where do you want to go in life? That is going to change the entire trajectory कि आप जिंदगी में आगे जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हो आप? I mean, it is going to change and come back to you full circle in life. Correct. In a positive way. Absolutely. व्यूअर्स मैं ये बता रहा हूं कि पल्लवी जी ये कह रहे हैं कि जब आप अपने साथ बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी अजनबी से मिल रहे हो, और जब आपने ये कर लिया तो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट देयर. ऑलमोस्ट देयर. करेक्ट. तो ये इमोशनल बर्नआउट का रीजन, रूट कॉज क्या होता है? बिकॉज पीपल फील, एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ डीएम्स, इमोशनल बर्नआउट, आई एम नॉट वैल्यूड. Like I said, when you have no boundaries, and if I give to everybody without replenishing it myself, देखो अगर if I'm over giving in relationships ना दर्शन, परिवार में बहुत होता है, joint families नहीं, even sorry, it is happening in families, it is happening in offices. Like I said, it is important to have your own boundaries ना. Like I said, अगर मुझे इस जगह से काम करना है कि usually you know what, people will overgive because they want something in return. They would either want the validation or the acknowledgement or everything. I mean, there is somebody who's written कि बच्चों को validation चाहिए होता है, and I'm sure, I mean, for them, it works as a sound of motivation, and that's perfectly fine. I mean, they are young, I mean, your presence should also be there for them to feel motivated enough. The motivation is you listening to them, you being there. But as adults, अगर मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे चले गए कि आज मुझे कोई बोले कि मैं अच्छी हूं, और अगर आज मुझे कोई बोले तो फिर तो आई एम मूविंग अराउंड लाइक it is a complete oscillation ना. इधर उधर ही मूव करती रहूंगी. I'm going to move according to how people want me to move. No, that's the biggest struggle. So I think ये जो fit in और emotional exhaustion का कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए आता है क्योंकि तुम you don't have any boundary.
कितना मैं yes बोलूंगी? You have to start to say no to people when you are not in that physical, mental, emotional space. Burnout तो होगा ही होगा ना, burnout तो होगा ही सो होगा. तो जिस तरह से आपने बताया कि मैंने बाउंड्री बना ली, पर कई बार क्या होता है कि हमारी जो पैटर्न्स होती है हमें हमें वहां पे लेके जाती है। और ये भी देखा गया कि बार बार आपकी पैटर्न रिपीट होती है, चाहे वो फेलियर्स की हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस, इन टर्म्स ऑफ योर जनरल लाइफ। यू विल कीप रिपीटिंग द सेम। जैसे मान लीजिए आप पब्लिक लाइफ में है, आपके फैमिली फंक्शंस में है, आप इरिटेट हो जाते हैं, आप पब्लिक डोमेन में आपका शो डाउन हो जाता है। सर्टन ऑफ द थिंग्स विच इज हैपनिंग एंड इट्स अ पैटर्न विच पीपल हैव। हाउ टू ब्रेक दैट पैटर्न? इसके लिए कोच की जरूरत होती है. Like sometimes you will not be aware of your own patterns, but the coach is ग्रेट। going to सो मैं make you अभी understand. इसलिए मैं भी व्यूअर्स को बता देता हूँ कि प्लीज फॉलो कोच पल्लवी राइट अवे, क्योंकि ये सारी चीजें वो आपको हेल्प कर सकती है। शी कैन बी हेल्पिंग यू ओवर ऑनलाइन ऑल्सो, सो डोंट मिस, राइट अवे फॉलो हर एंड कीप फॉलोइंग हर पेज बिकॉज शी कैन गाइड यू ऑन दिस। मैडम Like प्लीज I बताइए। said, like I said, Darshan, सबसे पहले acknowledge the pattern, understand the pattern that you are in, name the emotion. करेक्ट। उस पैटर्न के साथ मेरा इमोशन कौन सा जुड़ा हुआ है, उसके बाद करेक्ट। फिगर आउट द रूट कॉज. करेक्ट। चाइल्डहुड पे कहाँ से आया है? क्योंकि यूजुअली वॉट एवर दैट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, जो तुम्हें ट्रबल में रख रहा है, ठीक है, ओह। अगर जो तुम्हें ट्रबल में रख रहा है, द पैटर्न दैट ट्रबल्स यू, आई मीन इफ माई फादर हैज टोल्ड मी पल्लवी यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल, दैट्स नॉट ट्रबलिंग मी, नो. But if somebody has told me that you don't look beautiful in my adulthood, I might just be there thinking 100%। about myself that 100%। I will not bring any value to anything, any place that ट्रू। I'm going. I've had a wonderful session with a girl today, and she said, Pallavi, listen, you have to acknowledge that when I enter a room, this is only what people are going to see. And if I bring any value to the table, that's the second step. And she's a very, very smart woman. Do you understand? So it is not how you look and what you look like. It is what you carry from the childhood is often is a voice of somebody who was your primary caretaker. वो आवाज जो तुम्हें बोलती है कि तुम अच्छे नहीं हो या बुरे हो या ऐसा दिखते हो या वैसा चलते हो, वो तुम्हारी आवाज ही नहीं है. So name the emotion and figure out the childhood wound. कहाँ से आया है, किसकी आवाज है वो, and figure out वो आवाज सच भी है क्या? अभी अगर किसी ने तुम्हें बोला, देर आर पीपल हु आर डूइंग सो वेल, लाइक आई सेड, प्रोफेशनली इतना सुंदर कर रहे हैं वो, दे आर अर्निंग प्रिटी वेल एंड दे स्टिल फील दैट दे आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था या टीचर ने बोला था या किसी ने बोला था. डू यू अंडरस्टैंड? करेक्ट। So that is a problem. That is something that they have to figure out कि किसकी आवाज है and start to give you proofs. There is a one very big exercise that I make a lot of people do. I think it's going to help your people too. लेट्स डू इट। Write down everything that you write down on the left side, everything that you believe about yourself. Okay. Everything. I am not Okay, beautiful. madam. I am not good enough. Madam, Yeah. so what are we doing is a live exercise for everybody, Yeah, of and course. this can be done anytime. Any Today, time in tomorrow? your life. Any Great. time in your life. सारे व्यूअर्स नोट कीजिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए फ्री है। इट्स अ कंप्लीट वैल्यू विच वी ऑफरिंग एंड इट्स अ ग्रेट टूल विच वी आर गेटिंग। प्लीज मैम बताइए। On the left side of the paper, write down every belief that you have about you. I am not good enough. I am not beautiful. I don't talk well. I am not very good with spoken English. Everything. I am not intelligent. I can't earn this amount of money. I have a lot of people do that. And on the right side, you can try to prove all of these wrong. ओके। And trust me, 99% of the times people have outdone these beliefs. It's just that they need to see them in front of them. I'm not intelligent in maths. The agent that I will not be able to earn a lot of money is what my parents have said. This very person was probably earning, I mean, for me, 10 lakhs a month is a good amount, and it's a good beautiful amount. And then when I make them see the both sides, and then they come into this space and they tell me, I didn't know that it is not right. People who have done the most in their lives will come and tell me, I have not done anything in my life. Because they did not sit with themselves to figure out what all have they done with and for the people that they love, even not in material mode, but a lot of other ways. True. Right? Very true. So this exercise is so
powerful. And then instead of reading the left side, जो तुम अभी तक अपने आप को बोलते रहते थे, start रिपीट में reading the बोलते थे। right side. करेक्ट करेक्ट। Start reading the right side. My right side is right here. ओह Right लवली। here. I am a great daughter, wonderful sister, good wife, excellent mother. My right side is right here, and I read it every morning when I sit on my table. लवली। That is going to change how you see yourself and you start to see the world. करेक्ट। तो आई थिंक मेरा जो सवाल था उसका आपने मुझे हेल्प कर दी, सेल्फ वर्थ बिल्ड कैसे करनी है, और इसका आपने प्रैक्टिकल आई थिंक आपने टूल भी अभी दे दिया है। तो गोइंग बैक टू लिटिल रिवर्स, यू ऑल्सो हेल्प अस विद द इमोशनल ट्रिगर्स के एक इमोशनल ट्रिगर आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है जो आपने बताया है। देखिए इमोशंस तो या ऑफ कोर्स लाइक आई सेड इमोशंस में भी a lot of time people will victimize themselves कि बाहर वाला कर रहा है ना, लाइक आई सेड उसके लिए तो आपको ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, why am I in this place? मैं क्यों हूँ इस सिचुएशन में, मैं बार बार क्यों हूँ? और ये क्वेश्चन हर एक चीज के लिए काम करता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो खराब हो रही है, चाहे आप जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस के लिए काम नहीं कर पा रहे, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितना हम लोग बाहर की फोर्सेस पे काम कर लेंगे, समडे यू विल हैव टू सिट विद योरसेल्फ, शायद मैंने ये काम नहीं किया होगा, तभी ये नहीं हुआ है। एंड आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क ऑन योरसेल्फ तुम्हें बहुत चीजें समझ आती हैं अपने बारे में, और तभी तुम अपने आप को, तभी यू विल बी एबल टू गो वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ रादर देन जस्ट पुटिंग द ब्लेम ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओह लवली। सो इमोशंस इज समथिंग लाइक आई सेड, नेम द इमोशंस, सिट विद इट and figure out what is in your control and what is not in your control. I mean, I can't, how much can I cry for something that is not even in my control? 4 दिन से बारिश हो रहा है, मैं क्या करूं उससे रोके कि मैं तो भैया अपना मेडिटेशन का क्लास नहीं ले पा रही हूँ, या आई एम नॉट बीन एबल टू डू माई चैनलिंग, और कुछ भी, कितना रो सकते हैं हम उसके लिए? आई कैन probably take this into account, figure out a room, a hall wherein I can call my clients and be there for the meditation services. Something has to be done, no? कितना रोएंगे बाहर की चीजों के लिए? करेक्ट। ओके। सो बिकॉज मेरे पास विमेन के बहुत सारे सवाल आए हैं। देयर इज अ विमेन, शी इज टॉकिंग अबाउट कि इमोशनल लोड हम लोग ज्यादा लेते हैं, और शी इज टॉकिंग अबाउट ब्रॉडली बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, सारे परिवार की जवाबदारी है। शी से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज लेके चल रही हूँ, एंड इट इज एक्चुअली वेइंग मी डाउन। हाउ टू हैंडल इट? Create space for yourself. With women, being a woman, I can also say that there are various roles and responsibilities that we have to play, and that's, I mean, it is too much sometimes. But then if I am living in alignment with who I am, and I'm doing things that make me happy once in a while, I mean, it is like you can't pour from an empty cup ना, तो अपना कप जब भरने लग जाओगे तो जिंदगी आसान होती चली जाएगी। सो प्रॉबेबली बहुत सुंदर। अगर मुझे ये लगता है कि मुझे किताब पढ़नी है, आई लव टू रीड, ओके, तो अगर मुझे किताब पढ़नी है और अगर मैं वो पढ़ती हूँ ना, तो आई फील वेरी हैप्पी। स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ दैट मेक्स यू हैप्पी। यू मस्ट बी योर प्रायोरिटी। और जब तुम अपने लिए काम करना शुरू कर देते हो ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसा करने के लिए, बिकॉज योर कप इज फुल। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ना, फॉर मी इट इज मोर अबाउट डूइंग एवरीथिंग, going out on a coffee date with my own self, reading my favorite book, meeting the people that I love, listening to something that I love to listen to. I like to sing. I mean, I have rookie effort, but I love to sing. So I would go out to a cafe, I would take the mic and I would sing. So do things that make you happy. Fill your cup more with what makes you happy around life, and it's going to be easy then. But your roles and responsibilities are there. तुम उनको डिफाइन नहीं कर सकते हो ना। इफ आई एम अ मदर ऑफ 2 children, आई brought 2 individuals to this world, दर्शन, आई कैन नॉट disown them. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई टुक, बट उसके साथ साथ अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उस पे काम करो। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक आपने बहुत सरलता से और बहुत सटीक जवाब दिया है, बिकॉज आई वुड से टाइम एंड अगेन समवेयर इन द लाइफ ऑल ऑफ अस गो थ्रू ऑल दिस। प्रोपोर्शन ज्यादा कम होता है, बट अगर आपने ये जिस तरह से बताया है वो उसको अगर लोग समझ लेते हैं, एंड आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव अगर वो थोड़ा सा भी समझ में आ जाता है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
यूथ फोकस एक सवाल है मेरे पास. They find this, they understand this because of the social media. They've started understanding this. Youth, they use YouTube, but then they are not able to find the healing thing. They want to heal it. कोई practical tools, tips, mental approach या एकाध सिस्टम जो उनको हेल्प करेगी काम डाउन करने की. देखिए, there's this one very easy exercise that I tell my clients, and that is walk barefoot on the grass. ओके. बहुत ही आसान कर देता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बड़ा एक्टिवेट करता है और अपने आप एक कामनेस आती है. वन. सेकेंड, आई बिलीव प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि आपकी जिंदगी में क्या नहीं है ना, I can show you hundreds of my diaries. They are full of just being grateful for whatever that I have in my life, Darshan. So this is a very beautiful example I can share, and somebody has shared it with me, and it's changed my life around how I feel. Please ask me. हिंदी में थोड़ा बताएंगी. ग्रैटिट्यूड का मतलब है आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए यूनिवर्स को, ईश्वर को धन्यवाद देना. तो मेरे पास बड़ी सारी डायरीज है जिसमें मैं सिर्फ रोज ये लिखती हूँ, एंड रैंडम थिंग्स. प्रॉब्ली व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सन मेक्स मी हैप्पी. मुझे बहुत ही खुशी देता है. मुझे मेरे गमले के फूल बहुत खुशी देते हैं. तो प्रॉब्ली अगर दर्शन, इफ आई देयर आर टू इंडिविजुअल्स, आपके दो बच्चे हैं, अब मैंने दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट लिया. मैंने एक बच्चे को दिया और दूसरे बच्चे को भी दिया. पहले बच्चे ने खोला और बोला ये गाड़ी तो मुझे नहीं चाहिए थी, मेरे पास है ऐसी, मुझे नहीं चाहिए, और मैंने फेंक दिया. दूसरे बच्चे को मैंने गिफ्ट दिया, उसने बोला थैंक यू सो मच आंटी, आई वांटेड दिस गिफ्ट, ये गाड़ी मुझे चाहिए थी, थैंक यू सो मच, दिस इज माय फेवरेट कार. तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, तो किसके लिए ज्यादा गिफ्ट लाएंगे? चाइल्ड भी. ऐसे ही जो भी हम लोगों के पास चीजें हैं, वी स्टार्ट टू बिकम ग्रेटफुल. अगर हम उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें तो यूनिवर्स और ईश्वर दोनों को लगता है ज्यादा ही दे देता हूँ, वैसे ही बहुत संभाल के रखती है. ऑलराइट, तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल. स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर दैट यू हैव. एक प्रैक्टिस होती है त्राटक, बिगिनर्स के लिए है, जिसपे अपने लेवल के, इस लेवल पे आप एक कैंडल को रखेंगे एंड गेज दैट कैंडल. उसको जला के उसकी लाइट, उसके फ्लेम को गेज करें जब तक वो इमेज आपके पास ब्लर्ड नहीं हो जाती. कोशिश करें 1 मिनट करने का शुरू से, एंड गो अबाउट 5 मिनट्स. डू इट. इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर हेड. आपके दिमाग में, हम लोग मेंटल डाइट बोलते हैं इसको ना, डाइट के लिए हम लोग कम खाना खाते हैं ना, यहाँ के लिए भी हम लोगों को डाइट चाहिए. यू कैन डू दिस. त्राटक इज एक्सट्रीमली पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. आई ऑल्सो फील 4-7-8 का ब्रेथ वर्क. 4 इनहेलेशंस, 1 2 3 4, होल्ड. 4 जब बार आप सांस लेंगे, 7 बारी होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 8 टाइम्स एक्सहेल करेंगे. 4-7-8, 4 इनहेलेशंस, 7 होल्ड्स एंड 8 एक्सहेलेशंस. इसके लिए किसी कोच और थेरेपी की जरूरत नहीं है. इट इज गोइंग टू रियली रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम. एंड फिफ्थ, जिसकी हमें आई जेन्युइनली फील बड़ा ही कम माना जाता है उसे, start repeating the affirmations and things that you want in your life. Visualization 6. जो भी तुमको चाहिए उसको बोलने शुरू करो. My affirmations are there in my heart by heart. There are 45 minutes in my day randomly when I just walk about and repeat my affirmations like a mad person. Like a mad person. And keep repeating it till the time they don't become a part of you. All right? Affirmations. Please create the life that you want. Your tongue has a power of touching one sphere of the universe. इतनी ताकत है तुम्हारे शब्दों में, तो वही शब्द बोलो जो तुम्हें बेहतरी की तरफ ले जाए. उन शब्दों को जैसा तुमको चाहिए. जो चीज मुझे नहीं चाहिए मैं क्यों बोलूं? Why should I speak something I don't want? मुझे ठीक चाहिए सब. आई बिलीव इन सडन मिरेकल्स एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स. तो मैं रोज बोलती हूँ ये. Alright, so start affirming more of what you want in your life. These 5 things can really help you walk about, really help you heal. Correct. Great. I think you shared a lot of stuff here right now because, sorry,
I got a lot of questions, but we have taken enough of your time. So I think before we move on to the fun part, uh, मुझे एक और चीज पूछनी थी बिकॉज आपने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं. जस्ट अ क्विक recap on we keep going back to the patterns. First of all, how can we create a positive pattern? वो थोड़ा बता दीजिए बिकॉज वो नेगेटिव में तो Affirmations. बहुत बात हो चुकी है. अवेयरनेस पे काम करिए. तो अगर मेरा पैटर्न है कि मैं रिलेशनशिप्स पे बिल्कुल काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना, फिगर आउट करो क्यों क्यों नहीं कर पाता हूँ. मैं क्यों नहीं काम कर पा रहा हूँ. व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट, लाइक आई सेड, व्हाई एम आई इन दिस सिचुएशन, व्हाट डू आई डू टू बी इन दिस सिचुएशन. अवेयरनेस एंड रिपीटिशन ऑफ द पैटर्न दैट यू वांट टू डू. अगर मुझे Okay. बात बात पे गुस्सा आ रहा है, एंगर इज अ वेरी वेरी बिग पैटर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. इस केस में बहुत कोशिश करो कि उल्टा गिनती गिन लो. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. I tell this to a lot of people. If you don't do this, just keep quiet. Try and keep mum and get out of that room. Tell your partner कि भाई मैं I'm trying my best. I'm trying not to indulge. तो पहली बात तो awareness of the pattern, like I said, कि इस इंसान से या इसकी इस बात से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है. And then disconnect. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 or else go out. पैटर्न्स के लिए तो हम लोगों को वो अभी तक हमने नहीं लिए है ना दर्शन. इफ आई कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग आई विल गेट द सेम रिजल्ट. तो कुछ तो Absolutely. चेंज करना पड़ेगा ना. तो कुछ तो एक्शन चेंज करने पड़ेंगे ना. अभी मैं लड़ाई के लिए दोनों भिड़ते हैं, अभी मैं बाहर चले जाऊंगा या चले जाऊंगी तो कुछ तो चेंज किया ना, तो कुछ चेंज होगा. True. Right? So for creating a different reality, you need to create patterns that you align with. Like I say, the biggest problem is people don't know what they want. भाई अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं जीपीएस में क्या डालूं. मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ हूँ. देहरादून से दिल्ली, तो कहाँ जाना है और कहाँ हो, दोनों पता होना चाहिए फॉर यू टू हैव अ पाथ. नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि उनका अभी का पैटर्न क्या है और वो क्या चाहते हैं. उसके लिए मेहनत लगेगी. अपने पैटर्न्स ब्रेक करना बहुत आसान नहीं है. यू माइट नीड अ कोच एंड यू माइट नीड अकाउंटेबिलिटी. खुद से आई थिंक अवेयरनेस बहुत बड़ा कारण है, और रिपीटिशन ऑफ द राइट पैटर्न ग्रेट. तो एंड द आपने राइट एक और शब्द, एक्शन. वंडरफुल वंडरफुल. आई थिंक आपने इसके लिए एक हेल्प की थी सबकी. आपने एक यू हैड इंट्रोड्यूस द वर्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. इसके बारे में बताइए. द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन. देखिए जो भी मैं रिपीट करती हूँ ना, अगर मुझे कोई भी आदत डालनी है, ठीक है, पहले 21 दिन में तो ब्रेन को समझ आता है कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये रोज कर रहा है या कर रही है. ओके. तो फर्स्ट 21 डेज में आपको लगातार कुछ ना कुछ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट टू रीड अ बुक. रीडिंग की मुझे हैबिट इंक्लूड करनी है. तो मैं पहले 21 दिन में ना ब्रेन को सिर्फ ये बताती हूँ कि अरे आई एम डूइंग दिस रेगुलरली, तो ये कुछ तो इम्पोर्टेंट है. 22 to 44 डेज में ना ब्रेन को समझ आ जाता है इम्पोर्टेंट है, तो कोई तो एक सिनेप्टिक कनेक्शन बना देता हूँ इससे रिलेटेड. 45 to 66 डेज में वो पैटर्न इंस्टॉल हो जाता है हमारे अंदर, तो हमारी हैबिट होने लग जाती है. ऐसे ही कोई भी चीज अगर हम लोगों को जिसकी हैबिट डालनी है, जस्ट हैव टू रिपीट इट. दर्शन, अगर आज मैं अपने बारे में खराब सोचती हूँ ना, वो भी इसलिए है क्योंकि मैं रोज रिपीट करती हूँ अपने ब्रेन में कि मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट. ऐसे ही जब हम नेगेटिव चीज पे रिपीट कर सकते हैं और हमारा ये पैटर्न हो सकता है, ऐसे हम पॉजिटिव भी रिपीट करेंगे तो भी तो वो पैटर्न डेवलप हो जाएगा. That is also going to work this way, na? So that repetition of the right pattern is extremely important. दोनों ही हाथ दिए थे. Probably if I write with the right hand is because मैंने इसको ज्यादा ताकत दी. इसका मतलब ये नहीं है मेरा लेफ्ट हैंड काम नहीं कर सकता. So negative, positive is a part of everybody. The more power you give to one thing, works for you. करेक्ट. तो मैं समराइज करना चाहता हूँ बिकॉज आपने बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है. आई थिंक आपने बहुत सारे टेकअवेज दिए बिकॉज मैं जिसकी समरी करने वाला हूँ. तो आपने ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत सरलता से बहुत डिटेल में जाके समझा है. पर 3 स्टेप में आपने उसको संक्षिप्त में अगर आप समराइज करेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा. एंड आई थिंक दिस विल गिव देम लॉट ऑफ क्लैरिटी. 1 2 and 3 which you mentioned. Like I said, the concept कि अगर आप कोई चीज रिपीट करते हैं ना, तो आपके ब्रेन को उसकी आदत लग जाती है. Start repeating things that will make you happy and will make you do better.
in your life. So it is the concept that brain उस चीज पे adapt हो जाता है जो आप उसको regularly देते हो ना. That is the concept of neuro. It is not a woo-woo ha-ha land. It is just that you have to understand that start doing things that can take you to the brighter side of life. Correct. That's the only agenda. और ये this is backed by science, correct? Yeah, of course this is backed by science. I think हमारे सारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत बड़ा टेक अवे है. न्यूरोप्लास्टिसिटी आप डेवलप कर सकते हैं. 100%. एक डिसीजन लेना होगा, उस पर काम करना होगा, और जिस तरह से आप अनकॉन्शियसली नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिवली बात करते हैं, उसी तरह से अगर आप डिसीजन लेते हैं, अगर आप सोचकर सेल्फ अवेयर होके पॉजिटिव चीजों पे बात करेंगे, तो वही चीजें आपको वही रिजल्ट देने वाली है, बट ऑन द पॉजिटिव साइड. Wonderful. Wonderful. I think, Pallavi, you had a great time. I think now it's some time for the fun. I think we've taken 1 hour of yours, and we've got something which is a surprise. So I hope you're ready. And it's going to be some rapid fire because we had a lot of technical, thoda heavy discussion हमने किया है, and I think we are thankful to you for that. एक rapid fire सवाल आपसे पूछते हैं कि ओवर थिंकिंग का इंस्टेंट क्योर क्या है? वॉकिंग, ब्रेथ वर्क, या एक छोटी सी चाय? मेरे हिसाब से तो अपने दिमाग के सिस्टम से सब कुछ पेन और पेपर पे बाहर निकालना, बिकॉज इस सिस्टम से निकाल के उस सिस्टम पे जब आ जाता है तो बहुत तरीके मिल जाते हैं उस पे काम करने के लिए. सो फॉर मी जर्नलिंग विद टी कैन वर्क राइट. वंडरफुल. तो मैडम ये कह रहे हैं कि चाय पीती जाओ, जर्नल कर लो. कर दो जो भी दिमाग के अंदर चल रहा है, गिव इट शेप. ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है ना दर्शन, जो भी हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है, फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रहा है. तो जब वो फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा. पर कोई और स्मार्ट लोग कहते हैं यार वो लिखना पढ़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ओवर स्मार्ट लोगों को समझना पड़ेगा कि इसकी भी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, और काम करने के लिए तो जो कोई बता रहा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी करा है और बहुत लोगों से करवाया है. करेक्ट. क्योंकि मनी जी पूरा मैंने यहाँ पे सारे सवाल लिखे, मैं याद रख सकता था, यहाँ पे ठूस सकता था, पर मैंने और आपने सरल काम किया कि लिख लिया, हम बात कर रहे हैं. करेक्ट. ग्रेट. एक टॉक्सिक हैबिट जो यूथ में होती है और दे शुड स्टॉप टुडे, एक्सटर्नल वैलिडेशन. प्लीज भूल जाओ कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तुम्हें कितना लाइक्स, कितना कमेंट्स. डू इट, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव, एंड आई एम श्योर समडे इट्स गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. करेक्ट. वो कलेक्टिव हो रहा है पूरा. मत करो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन, इज नॉट दैट ग्रेट. मैनिफेस्टेशन क्यों फेल हो जाता है? ओवर थिंकिंग या इम्पेशंस? नहीं, मैनिफेस्टेशन इसलिए फील होता है क्योंकि सबकॉन्शियस और नर्वस सिस्टम, अगर मैं आज आपको बोलूं यू नो टुमारो, आई मीन आपको नहीं, प्रॉब्ली वन ऑफ माय क्लाइंट हु इज ट्राइंग टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो शायद 1 लाख रुपए कमाती है, और मैं उसको बोलूं इस महीने तुम 1 करोड़ रुपए कमा लोगी. प्रूफ नहीं है ना, रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना, बिलीव ही नहीं करेगी क्योंकि कभी करा नहीं है, तो रेफरेंस पॉइंट नहीं है. सो जब हम किसी चीज को बिलीव नहीं करते ना इमोशनली, तब मैनिफेस्टेशन फेल होती है. तो वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स दैट आर अ रियल थिंग. आई मीन आई कैन एम फॉर 1 करोड़, बट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5 lakhs. I can earn 5 lakhs and then it can work around that. Correct. Trust break. So you should forgive or protect the energy. Oh, that is a very, we'll have to understand at what cost. I mean, कितना, कैसे ट्रस्ट ब्रेक. अगर कोई शादी के दिन बोल दे कि मैं नहीं आऊंगा शादी के लिए, तो बड़ा मुश्किल है. So I think for us it is important that you understand what's the intensity of the work around here. And forgive, मुझे लगता है बहुत ही difficult word है दर्शन. Forgive तो नहीं कर पाते. If there is somebody who's ripped your soul apart, आप forgive नहीं कर पाओगे. But you will just have to let them go so that you stay in peace with their own self and your own self. वो बैगेज लाइक यू नो यहाँ पे हम लोग उसे ड्रामेटाइज इसलिए कर रहे थे बिकॉज somewhere there are issues which are too big to handle. As you rightly said, either it will take a day, either it will take 10 years for you to come out of it. Absolutely. Somewhere you have to drop that baggage. You'll have to drop that baggage. One mindset which I think, you know, probably if you were 20-year-old, what would you develop? Just do what you are made to do. I mean, I always knew that I am this person who would get into coaching, counseling, healing. But, you know, at that point in time, whatever the parents were doing and saying, you become a part of everything. But then I think 30s and 40s are such beautiful ages that you have the freedom to do everything that you want in your life. So at that point in time, for every 20-year-old, just do what your heart aligns with more. I mean, now I think we are all aware
And Lovely, lovely, we have those things that you can go about things on your lovely, own. lovely. एनर्जी ट्रेडर्स के लिए क्या करना चाहिए उसमें? व्हाट इज द नंबर वन Energy, कल्प्रिट है? एनर्जी ट्रेडर्स आपको आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं। भाग जाओ, बताया ना, भाग जाओ, run away from them. You don't need to give any part of your energy to them. Run away from them. करेक्ट। And what is one of the most underrated skill by the youth? You talk about patience, you talk about the clarity. What is going to be the best thing? I think they're very smart. I will not say that they have no clarity. I mean, we can work about the proportion of people जिनके पास clarity नहीं होगा. But मुझे लगता है this Gen Z is very smart. I mean, I don't see any problem with them. I mean, if they want to work, they would work. I've seen so many young children in my team. They are so well equipped कि मुझे नहीं आता जो उनको आता है, दर्शन. So underrated तो मुझे नहीं पता, but I think I want them to love them more, to just understand that they are important. I think that is something that I see missing in them. I work with a lot of students, so I feel that they don't love themselves more. They just are trying to fit in some place or the other, forgetting who they are, forgetting that they deserve love. What is the biggest red flag in a relationship? Miscommunication or insecurity? I think if you have insecurity, then you need to communicate. And if you don't communicate and if your partner is insecure, that's the biggest red flag. Oh, lovely. अगर हीलिंग जो आपका कोर है वो सुपर हीरो होता, तो वो कौन सा सुपर हीरो होता? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, क्या होता? Super woman ही हो जाता वो. Oh, lovely. I loved it. It would I have wanted been a you to say super that. woman because I wanted you to say that. I love being, I love being a woman. Given another chance, I would love to be born as a woman only. I mean, what I can feel in the world is so I'm so different. glad you said this. I So love glad being you a said woman. this. Yeah, I think superwoman is the title I want to give. I mean, we all are taking so many roles and responsibilities, and I love it completely. I mean, I can get tired sometimes, but because I have a beautiful, wonderful partner as my support system, I am blessed, and two beautiful children to look after. Great. रिजेक्शन ज्यादा हर्ट करता है कि सेल्फ डाउट? Self-doubt any day for me. I think self-doubt is very difficult. Rejection हो गया, तुम 10 दिन रोलोगे, 1 साल रोलोगे, 10 साल रोक लोगे, जाने दोगे. पर self-doubt, I mean, it does not take you anywhere. कहीं नहीं जाने देता ना दर्शन. It does not take you anywhere. जिंदगी भर तुम्हें तो खुद के साथ रहना है ना, तो कहाँ भाग के जाओगे 10 साल में भी या 1 साल में भी. करेक्ट, करेक्ट। तो कोच पल्लवी क्या करती हैं जब वी अग्री, बिकॉज एवरी सिंगल डे देयर इज वन मोमेंट वेयर योर सेल्फ डाउट ऑन एन इशू व्हिच इज बॉदरिंग, आप क्या करते हैं? हाउ डू यू ओवरकम दैट? तो उस वर्जन का मेरा एक नाम है. ये भी आपके लोगों को आप बता सकते हो. उस वर्जन का नाम है निक्की. ओह, ठीक है. And whenever I see her coming and playing a role in my life, I say, shut up, Nikki, I am doing that. ओह, Shut लवली। up. Don't give me this nonsense. I am doing it. So you can give that version of you a name and tell that version of you to just shut up. This is the exact Lovely. thing. If your child comes to you and tells you, Mama, I've fallen, I'm not going to walk today, will you let your child say, Arey, don't walk? You will tell your Lovely child, concept. get up and go about, Baba, you will fall, you will get hurt. I am there, you go about. So I tell that version, shut up, I'm not listening to you, I'm going about, I'm not going to fall down. बहुत सुंदर टेकअवे दिया आपने। आई थिंक आपने तो विनिंग शॉट मार दिया, बिकॉज आई थिंक ये जो सिर्फ निकी को जान लिया तो सब कुछ हो गया, मैं तो मानता हूँ, बिकॉज आपने तो बहुत सारी चीजें दी है टेकअवे में। बट मैं चाहता हूँ कि लोग निकी को याद रखें। और थैंक यू सो मच कोच पल्लवी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाए, पर आपने जिस तरह से हमें 60-70 मिनट दिया, आई थिंक एग्जैक्टली 70 मिनट्स यू हैव गिवन टू अस, एंड वी हैव बीन सो एक्साइटेड विद दिस इंफॉर्मेशन, जिस तरह से आपने वैल्यू प्रदान की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी recap everything what you mentioned and it's a big takeaway. मैम ने एक चीज बहुत शानदार कही थी कि एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बताई थी, एफर्मेशन की प्रैक्टिस बताई थी। आई थिंक ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैम ने एक बहुत जबरदस्त आइडिया दिया जर्नलिंग का, आप लिखो, यहाँ पे लोड मत दो। आई थिंक दीज 3 थिंग्स हैव बीन अमेजिंग। 4-7-8 का ब्रेथ वर्क दिया आपने। 4-7-8 बहुत सिंपल है, अगर आप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। उसके बाद आपने एक और चीज कही थी मैम, Walking on the grass, bare feet, 15 minutes. करेक्ट, करेक्ट। बट आई थिंक मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। आपने जो निकी की बात की, आई थिंक
आप चंदू, श्याम, राम, जो भी आपको लिखना है बोल सकते हैं, बट आई थिंक wonderful, I think, takeaway. If you can just tell your Nikki that go away, Go it is away going to and save get your lost. everything. I'm doing it Okay, anyways. great. So I think Pallavi, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. It was a fun session. It was a learning Same here. session. Same So here. much value, so much insights. And I think हमारे सारे viewers ये समझ चुके हैं कि जो उनके paid sessions में ये जो सिखाते हैं वो आपको यहाँ पे live मिला है. So thank you so much, ma'am. Thank you so much once again. Thank you so much, Darshan, for having me. It was a delight being with you over the live. You Thank were you a so great much. host. You were a great Thank host. you. And I think the kind of जो सरलता आप लेके आए हैं ना, देखिए जानकारी बहुत सारे लोगों के पास है. किस तरह से खाना परोसना वो भी आपके पास एक आर्ट है, पर आपकी जो सरलता है ना वो यहाँ पे उभर के आ रही है. सो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. थैंक यू सो Thank you. मच Thank you फॉर so much. आंसरिंग Thank you. ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, द कॉम्प्लेक्सिटी, एंड helping people overcome their difficult inner child